Hello friends, my name is Professor Shilpa. Look into the structure of Indian financial system. Indian financial system is one of the most important aspects of the economic development of our country. किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है. So, Indian financial system is a mechanism by which savings are transformed into investments. Now let's look into this chart of the structure of Indian financial system. It is divided into two parts, two main parts. That is, first is Ministry of Finance, which is regulated by Government of India. Second is Ministry of Consumer Affairs. We'll study part wise. Let's first study first part, that is Ministry of Finance. Ministry of Finance regulates four important sectors. That is, first is RBI, SEBI, third is IRDA, fourth is PFRDA. So RBI regulates four important parts. First is commercial banks. Generally, banks are classified into scheduled and non-scheduled banks. Scheduled banks are majority banks which are included under RBI Act Schedule number 2 are called as scheduled bank. सारे जो भी बैंक्स आते हैं, मेजॉरिटी बैंक्स जो होते हैं वो शेड्यूल्ड बैंक्स में आते हैं, एंड मेनली कमर्शियल बैंक्स आर कंसिडर्ड इन शेड्यूल्ड बैंक्स. सो व्हाट इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स? नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स मीन्स बैंक्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन RBI Act Schedule 2 are called as non-scheduled banks. So let's begin with first part, that is commercial banks. Commercial banks is segregated into four parts. First is public sector banks. जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. मीन्स जिस बैंक में भी 50% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट का है, दैट इज़ 51% स्टेक गवर्नमेंट का है, तो वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाई जाती है. फॉर एग्जांपल देना बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कम इन दिस कैटेगरी. फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, एक्सेट्रा. थर्ड इज फॉरेन बैंक्स. जो फॉरेन बैंक्स मीन्स जो भी फॉरेन बैंक्स इंडिया में ऑपरेट किए जाते हैं उनको हम फॉरेन बैंक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल सिटी बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, HSBC बैंक, बार्कलेस बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारे बैंक्स फॉरेन बैंक्स हैं. टोटल इंडिया में 45 फॉरेन बैंक्स हैं, एंड HSBC इज़ द लार्जेस्ट फॉरेन बैंक, and Standard Chartered is the first foreign bank in India. Fourth is regional rural banks, which are also called as Gramin banks. These banks are operating at regional level in different states of India. They have been created with a view of serving primarily the rural areas of India with बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. मीन्स ये बैंक का मेन एम ही है कि रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना. सेकेंड पार्ट विच इज़ regulated by RBI is cooperative banks. Cooperative banks, what the basic difference between commercial and cooperative banks is that
cooperative banks have the sole purpose to earn profit, while cooperative banks help to encourage rural business, agricultural sector and growth. cooperative banks टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, सेकंड है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. थर्ड पार्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं हमारा IDFC, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी. सेकेंड इज IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. मीन्स हर स्टेट के अपने अपने फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं और इनको हम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस कहते हैं. सेकेंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में तो ये स्टेट फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशंस थे. नेक्स्ट इज नाबार्ड. नाबार्ड मीन्स full form of NABARD is National Bank for Agricultural and Rural Development. NHB, National Housing Bank, provides loan for housing and promotes housing finance institutes. Third is SIDBI, Small Scale Industries Development Bank of India. तो ये जो तीनों हैं NABARD, NHB, SIDBI, ये सारे रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं. Next is NBFCs, non-banking financing companies. अब बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? NBFCs को फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है. ओके, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, दे कांट परफॉर्म फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स. लाइक कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं. तो NBFCs ये नहीं कर सकते हैं. दे कांट ओपन अ सेविंग अकाउंट. ऐसी परमिशंस NBFCs को नहीं होती है. बेसिकली तो NBFC क्या करता है? इट प्लेज अ की रोल इन मीटिंग क्रेडिट डिमांड्स विच आर अनमेट बाय ट्रेडिशनल बैंक्स. मीन्स NBFCs आर ओनली प्रोवाइडर्स ऑफ क्रेडिट. NBFCs एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता है. ओके, मतलब बैंक सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, लेकिन NBFCs में कुछ लिमिटेशंस हैं. तो RBI रेगुलेट्स ऑल, दैट इज कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड NBFCs. सभी को गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का काम RBI करता है. तो RBI एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज SEBI. SEBI स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. SEBI का काम क्या रहता है? इट रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स. मीन्स प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन दोनों को SEBI रेगुलेट करता है. म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी सारे गाइडलाइंस हैं दे आर गिवन बाय SEBI. SEBI का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए म्यूचुअल फंड डीलिंग्स में, स्टॉक एक्सचेंज में. सो फॉर दिस पर्पस SEBI इज एस्टैब्लिश्ड. थर्ड पार्ट इज IRDA, IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. It regulates life insurance and general insurance. लाइफ इंश्योरेंस में दोनों कंपनीज आ जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एज वेल एज पब्लिक सेक्टर कंपनीज. पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन सी है? एक ही है, वो है LIC. एंड प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे कि HDFC, स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, etc. General insurance means insurance of assets, properties, vehicles, accident, mediclaims. General insurance also includes public sector as well as private sector companies. Examples are National Insurance, Oriental Insurance, GIC. All these are covered under general insurance companies. Fourth part is PFRDA, that is Pension Fund Regulatory Development Authority of India.
ये क्या करते हैं, पेंशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होती हैं उनको PFRDA रेगुलेट करता है। होपफुली फर्स्ट पार्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लियर है आप सभी को। Let's move to second part, that is Ministry of Consumer Affairs. This is the second segment of Indian financial system. Ministry of Consumer Affairs में है FMC, that is Forward Market Commission. ये क्या करता है? It governs and regulates commodity exchange through commodity brokers. जैसे कि शेयर मार्केट होता है वैसे ही कमोडिटी मार्केट भी होता है। अब कमोडिटी मार्केट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में आता है वीट, चना, कोरिएंडर, सोयाबीन, शुगर एक्सेट्रा। नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में आता है मेटल्स आते हैं जैसे कि गोल्ड, डायमंड, कॉपर, लीड एक्सेट्रा। दूसरी चीज़ें लाइक क्रूड ऑयल, सिल्वर, ये सारी चीज़ें भी कवर होती हैं इसमें। तो जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग की जाती है NCDEX में, जैसे दैट इज़ नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। एंड जो नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं उनकी ट्रेडिंग की जाती है MCX में, दैट इज़ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे सेबी म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, उसी तरह कमोडिटी एक्सचेंज को FMC दैट इज़ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट करता है। अब कमोडिटी एक्सचेंज में जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में से ही एक प्रोडक्ट लेते हैं दैट इज़ राइस, एंड इफ सपोज प्राइस ऑफ राइस इज़ 60 रुपीज़ पर kg, ओके। तो अब ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है? तो जहाँ पे मतलब जो ये कमोडिटीज़ के प्राइसेस को डिस्कवर करता है वो कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में होता है। अब ये कैसे डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिस्कवर किया जाता है, ओके। सो जो ये पूरा प्रोसेस है प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म का, वो ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल रहे, इसके लिए सुपरविजन के लिए रेगुलेटर है, वो है FMC दैट इज़ फॉरवर्ड मार्केट कमीशंस। सो बोथ मिनिस्ट्री को कंबाइन करके IFS दैट इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। थैंक यू।